Good day, students. How are you all doing? So, today we are going to start the chapter 3 of class 9 science, and the chapter name is Atoms and Molecules. And, children, before this, a small quote. The quote says like this: Genius is 10% inspiration and 90% perspiration. मतलब आपकी जो जीनियस है चिल्ड्रन वो आपकी सिर्फ 10% होती है. सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत. जब तक आप खून पसीना नहीं बहाओगे, आपका पसीना बहाओ, आप मेहनत करो, आपका हार्ड वर्क, आपका डिटर्मिनेशन, उससे ही आप सक्सेस पा सकते हो. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम होता क्या है चिल्ड्रन? Atom is the smallest particle of an element. ठीक है, an atom consists of subatomic particles called as electron, proton and neutron. ठीक है children, so atom क्या बोलते हैं हम? Atom is the smallest particle of an element. सबसे छोटा, अगर गोल्ड को आप छोटे 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 टुकड़े करोगे, जो लास्ट पार्ट होता है वो चिल्ड्रन वो है एटम. और जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं चिल्ड्रन, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. ओके, न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज होता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus. Got it, children? So there are three subatomic particles of an atom, which are electrons, which are negatively charged, protons, which are positively charged, and neutrons, which have no charge. Now coming to molecules. A molecule is two or more atoms which are connected to each other by a chemical bond. Like for example, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है. It is connected to each other. There are two atoms of hydrogen, yes children, and one atom of oxygen. How are they connected, children? They are connected by chemical bonds. And ये क्या है? ये है a compound which is water. ठीक है, so molecule क्या होता है children? Molecule is two or more atoms which are connected to each other by a chemical bond. Got it? Like for example, ammonia ले लो, nitrogen is connected, one atom of nitrogen is connected with three atoms of hydrogen, like that. Got it children? So जब हम एटम की बात करते हैं चिल्ड्रन, सो अब ये हम लेंगे, चलो सपोज दिस इज द एटम. इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है. हम बाद में चिल्ड्रन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इसका, इसके मॉडल्स, जो जो स्ट्रक्चर होते हैं एटम का, आपको अब डिटेल में मैं आपको मॉडल, इसके थियोरीज, इसके साइंटिस्ट की पोस्टुलेट्स के साथ आपको समझाऊंगी. ठीक है, सो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. और इसके अतराफ जो होते हैं चिल्ड्रन, ये है नेगेटिव चार्ज विच इज ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. गॉट इट चिल्ड्रन? सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर negative charged. Okay, they are negatively charged. Protons are positively charged, and neutrons which have no charge. Got it children? No charge, or you can write zero. Got it? इसके पहले चिल्ड्रन अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लॉज है. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चिल्ड्रन and law of constant proportion. Okay, law of conservation of mass says that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं चिल्ड्रन, दे कम टुगेदर टू फॉर्म वाटर. ओके, एंड if suppose you take 1 gram of hydrogen and you take 8 grams of oxygen, okay children, they come together to make 9 grams of water. Got it? So it's very important, and you have to understand that mass or can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Got it children? So इसके basis पे एक numerical भी है जो आपके NCERT में है, which we will discuss later. Then the second law children, the law of constant proportion. Okay, the law of constant proportion says that compounds consist of elements, the constituent elements which are combined in the same ratio. Okay, that is they combined in the fixed ratio, they are combined in a definite ratio by mass. Got it clearly? सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है. सपोजिंग आप वाटर फॉर्म हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था
वाटर जो फॉर्म होता है, वाटर में दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, तो ये दोनों मिलके ही वाटर बनेंगे चिल्ड्रन। गॉट इट। अगर मैंने सपोजिंग मैंने सोचा कि नहीं नहीं बाबा मैं 2 हाइड्रोजन लेती हूँ और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेती हूँ, अगर इफ आई एम टेकिंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इफ आई एम टेकिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चिल्ड्रन, देन इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म वाटर, it is going to form hydrogen peroxide. Got it? So it's very very important that you have to understand that these compounds of which is consisting of a constituent elements, they combine always in the fixed ratio. Got it? For example, Al2O3. Al2O3 क्या हो गया चिल्ड्रन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे Al2O3। इसमें देखो चिल्ड्रन 2:3 रेशियो। सो 2 एटम्स एल्यूमिनियम के हैं, 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, है ना चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ दे आर कंबाइनिंग। अब चलो फिर हम वापस जाते हैं एटम को थोड़ा डीप में स्टडी करने के लिए। एटम जो हमने बोला था चिल्ड्रन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इजंट इट? और किससे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं मैंने बोला उसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स एटम के अंदर क्या होता है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ, एटम इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ। बट चिल्ड्रन हमें साइज भी पता होना चाहिए। साइज जो होता है चिल्ड्रन एटम का बहुत बहुत छोटा होता है, विच इज नॉट सीन और विजिबल बाय योर नेकेड आई। ओके, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का, सपोजिंग मैं अगर एप्पल के साइज का एटम का बता रही हूँ, इट इज एंड वी आर ऑलवेज मेजरिंग इन नैनोमीटर। ओके, एप्पल इज 10 to the power of -1. Got it children? The size of an atom. Okay, if I am talking in terms of meter. हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन, एंड इज 10 to the power of -3. You can as well imagine how small is the atom of ant. Okay, a grain of sand, अगर आप मिट्टी लोगे, उसके जो छोटा सा ग्रेन होता है चिल्ड्रन, इट इज 10 to the power of -4 मीटर। गॉट इट? सो इतना छोटा होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज 10 to the power of -8। और मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर होता है, इट इज 10 to the power of -9। और जो एटम, हाइड्रोजन का एटम होता है चिल्ड्रन, दैट इज 10 to the power of -10 मीटर। That's so you can as well imagine the size of the atom is very very small. Okay, and this small matter में भी याद में हमने पढ़ा था, matter is made up of particles and they are extremely small beyond your imagination, like that. Okay, so atoms is very very small size. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चिल्ड्रन, द सिंबल्स विच वर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने चिल्ड्रन पहले, जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसने कुछ सिंबल्स दिए थे चिल्ड्रन। उसका सिंबल था, जैसे हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को बोला एक सर्कल में एक छोटा सा डॉट बनाओगे तो ये हाइड्रोजन है। आपको इस तरह से आपको याद करना है। अगर कार्बन बनाना है तो कार्बन जो होता है उसके अंदर ग्रे कलर का पूरा करोगे तो ये है कार्बन। गॉट इट? ऑक्सीजन है चिल्ड्रन, उसने बोला ऑक्सीजन का सिंपल 0, दैट इज ऑक्सीजन। फॉस्फोरस का चिल्ड्रन, जो मर्सिडीज होती है जैसा होता है ना, इसका जैसा सिंबल है, इसका फॉस्फोरस। सल्फर बोला है 0 विथ क्रॉस, दिस इज सल्फर। प्लैटिनम गोल्ड विथ P। ठीक है चिल्ड्रन, गोल्ड आपका जैसे 0 है G, और ये सब मिला के ऐसे सिंबल बनाया। अब आयरन का भी I है, और कॉपर का उसने बोला है कि गोल्ड बनाओ और इसके अंदर C लिख दो, सो दिस इज कॉपर। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। याद रहेगा आपको इतने सिंबल्स इतना मुश्किल है, इजंट इट? सो मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स। अब सबने बोला कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड IUPAC, okay, which is called International Union of Pure Applied Chemistry. Children, we only follow that. Okay, so जो भी ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने लिखा है हम वो फॉलो करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिंबल्स कोई भी याद नहीं रख सकता, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू रिमेंबर दी सिंबल्स, क्योंकि अगर मेरे को गोल्ड बोलोगे तो एवरी टाइम मेरे को G लिखना है, उसमें से बनाना है। फॉस्फोरस के लिए मुझे मर्सिडीज साइन बनाना है, सल्फर के लिए मुझे क्रॉस बनाना है, मुझे याद नहीं रहेगा, isn't it? So उन्होंने बोला कि बेस्ट है कि आप सिंबल्स दो। सिंबल्स में उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा चिल्ड्रन वो कैपिटल लेटर में होगा, जो सेकेंड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, ये दिस इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC बोलते हैं चिल्ड्रन इसको। एल्यूमिनियम है AL, जैसे कैपिटल A एंड स्मॉल L, इसका नाम है एल्यूमिनियम। तो ये आपको याद रखना इजी है ना, एल्यूमिनियम, तो आपको पता है कि ये याद रहेगा।
argon, Ar, copper, Cu, nitrogen, N, phosphorus, जो है P, potassium, K, oxygen, O, sodium, Na, calcium, Ca, chlorine, Cl, lead, Pb, iron, Fe, hydrogen, H, gold, Au, fluorine, F. So ये सब चीजें, there are lot of symbols, children, and lot of elements, and it is easier for you to remember them because generally क्या है, first capital letter होगा, अगला small letter होगा. लेकिन चिल्ड्रन आपने देखा है कि थोड़े से जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अनीता मैम आपने तो सोडियम को Na बोला, isn't it? But sodium should start from S, isn't it? तो थोड़े से जो एलिमेंट्स है चिल्ड्रन उसको हम उन लोगों ने नेटिव से ले लिया, मतलब उनके लैटिन टर्म्स ले लिया और उनको बोला कि जैसे नेट्रियम, सोडियम जो आया है वो नेट्रियम से आया है, इसीलिए हम उनको Na बोल रहे हैं. ठीक है, पोटेशियम आया है फ्रॉम केलियम. Okay, that is how the symbols have been given from their native places. The Latin names have been given. अगला हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन एटम का एटॉमिक मास. मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, समझ में आ गया चिल्ड्रन? एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. सी व्हेन आई एम सेइंग mass of an atom of an element. Okay children, if I'm saying aluminium, aluminium एक element है, उसका जो atom है उसका mass जो होता है उसको हम बोलते हैं atomic mass. ठीक है, example for example से carbon monoxide. carbon monoxide को हम कैसे लिखेंगे children? C capital and O small. ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम बोलेंगे, सो आपको प्लीज अंडरस्टैंड करना चाहिए जो C और O होगा वो होगा आपका कोबाल्ट, क्योंकि ये छोटा है. अगर C और कैपिटल O होगा चिल्ड्रन, ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है चिल्ड्रन, ये याद रखना, कैपिटल O. ये क्या है? कंपाउंड है. ये क्या है? एलिमेंट है. ये याद रखना. गॉट इट चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि दिस is how you have to calculate the atomic mass of an atom. तो आपको क्या करना है? कार्बन का देखना है. कार्बन का क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का कितना है चिल्ड्रन? 16. ठीक है, so 16 plus 12 is equal to 28. So that becomes the atomic mass of carbon monoxide. Got it? Clear? So these confusions should be cleared कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड हो गया अगर हम O डालेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कैपिटल C कैपिटल O, कोबाल्ट क्या होगा? कैपिटल C एंड स्मॉल O. और जो एटॉमिक मास होता है चिल्ड्रन, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकन इन यूनिफाइड मास, दैट इज हम उसको बोलते हैं U, विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट. ओके, एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मास. Okay, and which is equal to 1/12 of the mass of the atom of carbon. समझना है कि हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन, कार्बन को लेके सपोजिंग मुझे कोई चीज मेजर करनी है तो मुझे उसके रेफरेंस के लिए, ठीक है, जो करते हैं तो नोन क्वांटिटी से हम उसको रेफर करते हैं, नोन क्वांटिटी से हम उसको रेफर करते हैं. सो सपोज इफ आई हैव टू नो द मास ऑफ ऑक्सीजन, आई हैव टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ 1/12 mass of the carbon. Got it? So that is called atomic mass unit. Atomic mass unit is called unified mass. That is, it is defined as the quantity of the mass which is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon. Clear children? So 1 AMU is all this children. 1 AMU is anything, any mass which you are taking, you are equalizing or you are referring it or you are measuring it against 1/12 of the mass of carbon. ठीक है, पहले हुआ करता था चिल्ड्रन, पहले बोला कि चलो ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या है सबके साथ, इट हैज एन एफिनिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव एन एफिनिटी विद ऑक्सीजन, बट लेटर ऑन इट वाज थॉट दैट कि नहीं, लेट अस टेक कार्बन, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट में चिल्ड्रन कार्बन होता है, इजंट इट? सो वी आर ऑल मेड अप ऑफ, हम मरने के बाद कार्बन बनेंगे, प्लांट्स जलने के बाद कार्बन हो जाएगा, सो एवरीथिंग गेट्स डिकम्पोज्ड एंड इट टर्न्स इनटू कार्बन. सो दैट इज हाउ दे डिसाइडेड दैट 1 AMU, supposing if I am writing it as 1 AMU here, is equal to children 1/12th mass of carbon. ठीक है, got it children? So we are always referring to the carbon.
अब क्विकली एटॉमिक मासेस करेंगे, एलिमेंट्स के फ्यू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको लर्न करना है. ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन का होता है 1U, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14. ओके, जो है चिल्ड्रन आपका टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी का, आपको लर्न करना है वो बाय हार्ट. ऑक्सीजन इज 16, सोडियम इज 23, मैग्नीशियम इज 24, सल्फर इज 32, chlorine is 35.5U, calcium is 40. So this is how you have to know the calculations, this is how you have to know. Okay, so if I have to say 1 AMU is equal to 1/12. So इसका कार्बन का, क्योंकि मास जो है चिल्ड्रन वो है 12, एटॉमिक मास क्या है कार्बन का 12. सो कोई भी जो मेजरिंग, जो रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, वो है द आइसोटोप ऑफ कार्बन, which is the 12 isotope. So ये C12 होता क्या है चिल्ड्रन, ये है आइसोटोप ऑफ कार्बन.